last theorem. The lemma, तो I think it was done. थोड़ा से yesterday I was proving this lemma 6.8.3. So it was almost done. Let me recall it. So lemma was, in short, I am writing that if you have k distinct eigenvalues, A is any square matrix, suppose n cross n, and it has k distinct eigenvalues. That means lambda 1, lambda 2, and so on, lambda k, distinct eigenvalues. And for these distinct eigenvalues, you have these distinct eigenvectors corresponding to eigenvalues. Then the set of these eigenvectors will be क्या होगा? Li, है ना? कोई है भाई जो कल क्लास में था? आलोक? Yes sir. You was present yesterday? Yes sir. हाँ, तो ये थ्योरम हमारी चल रही थी. बताइए सुमन रहमान. Yes sir. थे आप कल? No sir. चलो, लेक्चर मैंने शेयर किया है, उसमें आप देख लीजिएगा वो. तो इसको हमने प्रूव करा था बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. वी प्रूव्ड इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. वी प्रूव्ड इट. So induction, you know what will happen? It is true for k is equal to 1, है ना? It is true for k is equal to 1. K is equal to 1 के लिए it is true because you know these eigenvectors, they are always non-zero. So any singleton non-zero always Li, है ना? Now suppose that it is true for k is equal to r. It is means this lemma. It is true for k is equal to r. That means what? Your V1 to Vr are Li. That means V1, V2, Vr, it is Li. ये आपने सपोज किया था ना? तो क्या प्रूफ करना होगा हमें? We prove that for k is equal to for r plus k is equal to r plus 1, it is true. That means this is true. We prove that it is true. So उसके लिए क्या करना होगा? You have to show it is Li. So for that, what I considered, I will take a linear combination of these vectors. yes sir. Alpha r Vr plus alpha r plus 1 Vr plus 1 is equal to 0, and I will prove that all alphas are 0. It has only a trivial solution. Yesterday I have already explained it in detail. I am just writing in short. So what will happen? I will prove it. So now what I can do, I can operate A on both sides, है ना? A हमने operate कर दिया both sides. As I told you that A can work as a linear transformation also. So I am operating A. Short पे लिख रहा हूँ यहाँ. And because it's a linear transformation, you can take alpha 1 outside, and A V1 will become how much? Because lambda 1 is the eigenvalue. So this will become lambda 1 V1. है ना? Lambda 1 V1. Similarly, alpha 2 A V2 will become lambda 2 V2 and so on. Alpha r outside and lambda r Vr plus alpha r plus 1 lambda r plus 1 Vr plus 1, and A0 will be 0 because it's a linear transformation. You are a matrix multiply by 0, it will be a 0 matrix or 0 transformation. ये हमें यहाँ पर given है कि what is given to you, that A of Vi is equal to lambda of lambda I Vi. इस सब में ये लिखा है. ठीक है?
Then what we did here, suppose it is equation number 2. So what I told you, हमें show करना है li, तो all should be 0. So what I will do, I will multiply 1, है ना, 1 ये थी आपके पास विदाउट a, तो 1 ने मल्टीप्लाई sir. किया आपने किस टर्म से, इस टर्म को कैंसिल करना है, तो लैम्डा r प्लस 1 से, क्योंकि लैम्डा r प्लस 1 नहीं है, एंड सब्ट्रैक्टिंग विद 2, तो दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, है ना, देखो दिख रहा है, 1 का मतलब क्या है, विदाउट a जो लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ तक कल मैंने करा था, इसके आगे अब देखिए, तो व्हेन यू विल Yes. सब्ट्रैक्ट इट यू विल बी गेटिंग अल्फा 1, देखिए यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा 1 कॉमन है, v1 कॉमन है, तो व्हाट विल बी कमिंग, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा r प्लस 1, द टर्म विल बी कमिंग लैम्डा क्या है, अल्फा 1, इसमें अल्फा Alpha 1 V1. द टर्म विल बी कमिंग अल्फा 1 v1 बाद में लिख लेंगे, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा r प्लस 1 v1, है ना, ये फर्स्ट टर्म आएगा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, लैम्डा r प्लस 1 से, तो जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा 1 कॉमन, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा r प्लस 1 एंड आउटसाइड v1, सिमिलरली प्लस अल्फा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा r प्लस 1 v2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म अल्फा r lambda r minus lambda r plus 1 br, और this last term, this term R plus it 1. will be cancel out, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, एक्चुअली से कैंसिल Yes, करने sir. के लिए I have multiplied by this, so last term will be cancel out, so this equal to 0. 0. Okay, so when it is 0 and now you know that v1 to vr is li, तो अगर ये li है तो जितने भी स्केलर्स हैं इसके सब क्या होंगे, 0, sir. 0 होंगे, है ना, since v1 v2 V1. vr, this V2. set is li, so we have, it has only a trivial solution, so you have Yes, alpha yes, sir. 1 lambda 1 Lambda. minus lambda r plus 1 is equal to 0, है ना, अब you and alpha 2 lambda 2 minus lambda r plus 1 is equal to 0 and so on, alpha r lambda r minus lambda r plus 1 is equal to 0. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, either this 0 or this 0, but you know कि these all are distinct eigen values, है ना, ये distinct है, तो अगर distinct है, Yes, it means sir. what, they cannot be equal, so what is the possibility only, alpha must 1 be. is 0 because lambda I is not equal to lambda r plus 1 for I is equal to 1 to r, है ना, ये distinct है सारे, तो इसलिए alpha 2 alpha 3 and so on alpha r will be equal to 0, है ना, so you got Yes, all sir. alphas 0, और जब सब all alphas are 0 तो I can put this value in equation 1 back, जो 1 equation थी, so putting these values in 1 we get 1 क्या थी आपके पास, 1 देखो ये इक्वेशन थी, 1 ने मैंने यही कर दिया, Alpha सही one. कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इससे, और 1 was only this, है ना, ये आपके पास 1 Yes, sir. यहाँ पर a भी हटा दो, ये it was your 1, alpha 1 v1 plus this alpha r v1 plus 1 is equal to 0, it was your 1 in fact, so when you will put all alpha 1 alpha 2 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ this equal to 0, V1. last term, है ना, so we get alpha r plus 1 vr plus 1 is equal to 0, but it is non-zero because it is an eigenvector, है ना, Yes. this implies that alpha r plus 1 0, since v of r plus 1 is not 0, No. okay, so what you got, all alphas 0 including alpha r plus 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि you have, Yes, sir. वो क्या हो जाएगा? है ना, this implies that Alpha four. v1 v2 and so on vr plus 1 is li, LI. है ना, तो जब r plus 1 के लिए li है तो इसका मतलब कि this For all. whole set up to k is li,
by induction, and hence V1, V2, and so on, Vk is Li. So here I have used just this simple calculation by using induction. Okay. Then we have a problem set. So ये की लेमा थी आपकी problem set 6.8. It has some important properties of eigenvalues and eigenvectors. So first problem तो you can do, जैसे भी हमने पिछली प्रॉब्लम करी थी आप कर सकते हैं. It is I am leaving as an home assignment. आप इसे ट्राई करेंगे. Determine the eigenvalues and eigenvectors. For the matrices. Matrices. इसमें कुछ matrices दिए हैं, आप कर लीजिएगा. फर्स्ट है 3 1 6 2 2 by 2 की है तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगी इसमें ना. एक ई पार्ट कर लेना. इट इज कैरिंग 3 by 3 1 0 0 2 1 0 3 2 0. ठीक है. 2 प्रॉब्लम्स आर इनफ. ये कर लीजिएगा. Fourth problem is physically it is the property, it is important. If lambda is an eigenvalue of matrix A, then prove that first part, lambda square is an eigenvalue of A square. Okay? मीन्स अगर आपको A की आइगन वैल्यू मालूम है तो A स्क्वायर के लिए यू डोंट नीड टू फाइंड अगेन आइगन वैल्यूज. जैसे अगर A है इसके स्क्वायर की निकालनी है तो जस्ट यू नो द आइगन वैल्यूज लैम्डा, just take its square, it will be the eigenvalue of A square. Okay. In general you can say lambda n is an eigenvalue of an. ठीक है. इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी हो जाएगी. ऐसे प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिशन में आती हैं कि एक ही आपको आइगन वैल्यू दे दी है कि कोई ये 3 by 3 के मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू सपोज 1i minus i है, तो व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ a क्यूब? क्या हो जाएंगी? 1i क्यूब मींस माइनस i, एंड माइनस i क्यूब इज हाउ मच? i, है ना. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड. तो यहाँ पे हमें वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई ए 3 times एंड देन सॉल्व. ऐसा नहीं करना है. डायरेक्ट आप इससे लिख सकते हैं. सी अल्फा लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा ए. मीन्स अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो आइगन वैल्यू भी स्केलर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल आइगन वैल्यू, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर. ओके. स्केलर है कोई भी, रियल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. रियल लिया यहाँ पे तो रियल लिख दीजिए. स्केलर से रियल ही. हाँ तो रियल नंबर है. D is G lambda is an eigenvalue of G एक ही eigenvalue हो जाएगी. ओके. यस सर. हाँ. और GA क्या है यहाँ पर? GA is any polynomial where G is any polynomial. G is a polynomial. बात समझ में आई? जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक, इसकी आइगन वैल्यू जैसे आपके पास मान लीजिए अभी लिखा था मैंने ये. अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस i. ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अगेन अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ही तो आएगी. 3 by 3 की है तो 3 by 3 की आएगी, है ना. तो ये पॉलिनोमियल है. तो इस पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? जी लैम्डा. ओके. जैसे G1 होगी एक, तो G1 क्या हो जाएगा यहाँ पर?
इसकी जगह हम 1 रख देंगे बस। तो जी लैम्डा क्या है कि ए की जगह पर आप पहले लैम्डा रखिए, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, आई का 1 बन जाएगा। ओके, तो इसकी आइगन वैल्यूज Yes. क्या क्या हो जाएंगी अब? G1 होगी, अगर ए की 1 थी तो फर्स्ट आइगन वैल्यू विल बी G1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। सेकेंड आइगन वैल्यू कितना आ गया? सेकेंड आइगन वैल्यू विल बी Gi, आई क्यूब माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा ये? आई क्यूब, Minus one. है ना, Yes, sir. I square is minus and so on. So this is the property D कि अगर G लैम्डा आइगन वैल्यू है G A की, वो सॉरी लैम्डा आइगन वैल्यू है A की, तो G लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ G A. Is it clear from this example? Yes, sir. So for completion point of view, this is very important. In fact, these are the properties you can see. So I will prove it here. ये प्रॉब्लम में आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूव डेट, यहाँ प्रूफ करना है। So look at the proof. The first is easy. Lambda is given to you. Given है. Let lambda is an eigenvalue of A, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? What you have? Ax is equal to lambda x, है ना? ये पार्ट का, Lambda X. ये डेफिनेशन होती है। अब अगर मुझे इन फर्स्ट पार्ट आई नीड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कब आएगा? व्हाट आई हैव टू डू? ऑपरेटिंग ए बोथ साइड, अभी तो ए स्क्वायर आएगा। Yes. देखिए, आई नीड ए स्क्वायर, so I will operate A on both sides. So what will happen? Now A will multiply with A, है ना? It is a matrix, so you can multiply. You know, this is holds associativity. A square. यहाँ तो A square x हो जाएगा। अब lambda scalar, lambda will come outside AX, है ना? Because A is a matrix, it's work as a linear transformation. अब AX की वैल्यू क्या थी लेकिन? lambda x. lambda. Lambda So again I can put lambda x. तो इससे क्या आ गया? Lambda square x. Lambda So you square got X. A square x is equal to lambda square x. So this implies that lambda square ये पहला वाला is an eigenvalue of A A square, square. है ना? ये सिंपल सी कैलकुलेशन। बी पार्ट है आपका n के लिए, तो इसको मैं इंडक्शन से इजीली प्रूव कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि 1 के लिए होल्ड ट्रू है, r के लिए, r+1 के लिए भी। सो बी पार्ट वी कैन प्रूव बाय द इंडक्शन मेथड, induction method, है ना? Let us true is true, so it is true, of course it is true for r is equal to 1, क्योंकि वो तो हमें गिवन ही है कि लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है ना? ये तो ऑलरेडी गिवन है आपको, तो 1 के लिए ट्रू है। सपोज इट इज ट्रू फॉर r इज इक्वल टू One. k या k कुछ भी ले ना, अगर हमने r लिया तो k ले ले। लेट इज ट्रू फॉर, या अगर यहाँ k ले रहे हैं आप तो k इज इक्वल टू r कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक ही बात कि मैंने पीछे r उधर लिया था इसलिए कर दिया। लेट इट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू r, हमें प्रूव करना है n के लिए, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन? दैट मींस यू हैव नाउ arx इज इक्वल टू लैम्डा rx, से 1 डाल। X. अब यहाँ पर अगेन जैसे यहाँ मैंने किया था, आई विल ऑपरेट ए बोथ साइड्स, ऑपरेटिंग ए बोथ साइड्स, Both sides. because I want to prove for r+1, so I need r+1. How r+1 will come? When you will operate on both A. sides. So what will happen? Yes. A of A r+1 R plus 1 into X. और ये वो सेम lambda r will outside और ax will be Yes, what? sir. A. lambda Yes, x by this, है ना? इससे Yes, sir. तो कितना हो गया ये? lambda. Lambda R plus So this implies that A R plus the eigenvalue. lambda r+1 is an eigenvalue of ar+. A R plus 1. So hence it is true or k is equal to n.
ये प्रूफ करना। अच्छा सी पार्ट क्या है, अल्फा लैम्डा, अल्फा लैम्डा भी आप कर सकते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बोथ साइड में। Yes. C part भी also easy. This is you have multiplying by alpha both sides. So you will be having alpha lambda x. Up alpha a I can combine, and here I can combine this because they are scalar. So this implies that alpha lambda is an eigenvalue of alpha a. Alpha. चलो ऐसे ही पॉलिनॉमियल का कर देंगे, जी लैम्डा का लेके, ठीक है, क्योंकि जब स्केलर के लिए Yes. होल्ड है तो उसके सम के लिए होल्ड हो सकते हैं, तो डी पार्ट आप कर सकते हैं। 6 पार्ट सॉरी 6 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। से प्रॉपर्टी, वन मोर प्रॉपर्टी फॉर आइगन वैल्यूज, पेज 238, प्रूव दैट lambda is equal to 0 is an eigenvalue of the matrix A if and only if A is singular. A is singular. Okay, singular का मतलब क्या होता है, when a matrix is singular, Reject. जब Also उसका determinant. डिटर्मिनेंट जीरो होता है ना, Inverse. डिटर्मिनेंट जीरो होता Yes, sir. Yes. है ना, वो हम ये भी कह सकते हैं। मैप सिंगुलर जब हमने पढ़ा था कि इफ मैप इज नॉन सिंगुलर इफ इट हैज बाइजेक्टिव, है ना, और सिंगुलर होगा Yes, इफ sir. इट इज नॉट बाइजेक्टिव, तो वी से या तो 1 1 ना हो या ऑन 2 ना हो या बोथ आर नॉट देयर, तो वो सिंगुलर मैप है। मैट्रिक्स पे हम यूज करते हैं सिंगुलर, तो बाय डिटरमिनेंट वी कैन सी इफ डिटरमिनेंट इज जीरो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर, है ना। प्रूव Yes. दैट लैम्डा जीरो, वैसे तो एक प्रॉपर्टी और है वो इसमें डिस्कस नहीं हुई है, डिटरमिनेंट में आती है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द डिटरमिनेंट, वो अभी यहाँ पे आपके डिस्कस नहीं हुई है, इस पोर्शन में नहीं है वो, अगर वो आप प्रॉपर्टी देंगे तो उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है इसकी आइगन वैल्यूज की, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द Determinant. डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि सम अगर आप करेंगे आइगन वैल्यूज का तो वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एंड अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इट्स विल इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा। देखो अगर प्रोडक्ट है तो कोई भी एक आइगन वैल्यू अगर जीरो हो गई तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, Yes, sir. और डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा उस केस में। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे पास अभी नहीं है तो इसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके प्रूफ के लिए आई विल नॉट यूज इट। प्रूफ के लिए आई विल यूज डिफरेंट मेथड। देखिए मान लिया हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना, देन Yes. क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा एक्स, और लैम्डा एक्स Lambda कितना है X. 0, तो ये कितना हो Yes, जाएगा sir. ए एक्स इज इक्वल टू 0. 0, और एक्स, है ना, ये हमें ध्यान रखना होता है एक्स यहाँ पे हमेशा नॉन जीरो है। तो इफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 इट मीन्स व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए। इफ समथिंग इज 0 इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कहाँ जा रहा होगा, ये कर्नल ऑफ ए, है ना। कर्नल की डेफिनेशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स Image. दैट टीएक्स इज इक्वल टू 0, है ना। So here Ax 0 Yes. means x belongs to kernel of A. As I told you, A will work as a linear transformation. जो रैंक नलिटी linear transformation के लिए थी वही हम मैट्रिक्स के लिए शो कर सकते हैं। तो अगर x belongs to kernel of A है और x is not 0, है ना, तो इसका मतलब Yes. क्या हुआ, A.
कि कर्नल ऑफ ए Zero. जो है ये जीरो के अलावा कुछ नॉन जीरो है ना? Yes, sir. व्हाट डज इट मीन? आपको रिजल्ट कराया था कि t is 1 1 if and only if कर्नल ऑफ t Kernel. is 0, है ना? कर्नल ऑफ t Yes, is a sir. zero space then t is 1 1. याद है ये? Yes, sir. Yeah. तो यहाँ पर कर्नल ऑफ ये तो नॉन जीरो आ रहा है बिकॉज यू गॉट सम x which is belonging to kernel of A and x is not zero because it's a eigenvector. So it means you have some non-zero Yes, sir. vector in kernel of A. इसका अलग kernel A is not a zero space. तो अगर जीरो नहीं है तो इसका अलग क्या हुआ कि t 1 1. और A is not 1 1, है ना? Yes, sir. जब ये 1 1 नहीं है तो फिर इसका मतलब कि it cannot be non-singular. फिर non-singular के लिए it should be 1 1, it should be on 2. So this implies that No. A Singular. is not non-singular or A is singular, Not 1 1. है ना? ये क्लियर? तो ये बोथ Yes, साइड से sir. आप प्रूव कर सकते हैं यहीं से कि लेट अस सपोज A is singular, कन्वर्सली प्रूव कर देंगे हम, लेट अस सपोज A is singular. तो अगर A singular है तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्नल ऑफ A T is not 1 1 और दिस मींस कर्नल ऑफ A is not 0. कर्नल ऑफ नॉट 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें कोई x आपको ऐसा मिलेगा जो कर्नल A में होगा, है ना? which must have 0 is the eigenvalue. इसी को कन्वर्स शो कर देंगे, है ना? You have some Yes, x sir. belongs to kernel of A such that ax is equal to 0. तो x not 0 है और इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा मस्ट बी 0, तभी ये 0 के इक्वल हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू. इसी को हम कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं. लास्ट प्रॉब्लम और इसमें 7th. Just yes. 7th problem. If lambda is an eigenvalue of matrix A, then prove that A part lambda is also eigenvalue of A transpose. ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आइगन भी सेम रहेगी. एंड बी 1 अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ किसकी? एनी आइडिया? Inverse. A इनवर्स प्रोवाइडेड A इज नॉन सिंगुलर, है ना? तो अंडरस्टूड है कि अगर आप इनवर्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर होना जरूरी है ना? Yes, sir. तो अंडरस्टूड. Determinants. विदाउट नॉन सिंगुलरिटी यू कैन नॉट टॉक अबाउट इनवर्स. तो ये भी दो प्रॉपर्टीज और हैं उसी की तरह कि अगर आपको लैम्डा मालूम है आइगन वैल्यू ए की है तो ट्रांसपोज की भी सेम होती है और इनवर्स में रिवर्स हो जाएगी, बस रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ए पार्ट इन द सेम वे आई विल प्रूव वी हैव ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. अब अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो क्या होता है? दिस डिटरमिनेंट मस्ट बी 0, है ना? सिंगुलर होना चाहिए. अच्छा, अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो ट्रांसपोज का भी 0 होता है. अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा स्टिल इट विल बी 0, है ना? अगर किसी मैट्रिक्स Yes, sir. A 0 है तो ये ट्रांसपोज भी Yes, sir. 0 होता है ना? Zero होगा. तो ये आपका Yes, मैट्रिक्स है तो ये ट्रांसपोज भी 0 होगा. ट्रांसपोज को आई कैन टेक इनसाइड, तो जब इनसाइड जाएगा तो ये होगा A ट्रांसपोज और Yes, sir. Minus. माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा स्केलर है तो लैम्डा का ट्रांसपोज तो Right. लैम्डा ही रहा और I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I का ट्रांसपोज इज I, सेम रहेगा, Yes, है ना? sir. दिस इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या मिला इससे आपको? इट मींस कि A ट्रांसपोज X इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट हो गया ना. इट मींस Yes, व्हाट? sir. Yes. कि लैम्डा इज एन
आइगन वैल्यू ऑफ A transpose. ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का सेम रहेगा। सिमिलरली बी पार्ट में अगेन वी हैव ax is equal to lambda x, अब because it is given a is singular, a is non-singular, so I can operate a inverse both side। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, a inverse को ऑपरेट कर रहा हूँ, ओके, Yes. इनवर्स क्योंकि हमें गिवन है कि यहाँ पर आपके पास यू हैव नॉन सिंगुलर, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया। अब ए इनवर्स ए Yes, विल sir. एसोसिएट, आई कैन टेक will ए इनवर्स ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और लैम्डा को आई कैन टेक आउटसाइड। नाउ दिस इज आई, सो आई इंटू Yes, एक्स sir. है ना, आई इंटू Yes. एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए A इनवर्स inverse. एक्स, सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब आई एक्स तो एक्स बन जाएगा, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक्स रो वेक्टर होता है आपका, तो ये एक्स ही बन जाएगा। तो ए इनवर्स एक्स विल बी हाउ Yes. मच, 1 अपॉन लैम्डा, है ना, लैम्डा आपके पास यहाँ Yes, sir. जब 1 अपॉन लैम्डा ले रहे हैं तो जाहिर है, क्योंकि आपने खुद ही कहते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, तो ए इज नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा, लैम्डा नॉन जीरो, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि लैम्डा जीरो है इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर, तो इसलिए मैं यहाँ पे लैम्डा से डिवाइड कर सकता हूँ। तो दिस मीन्स व्हाट, 1 1 अपॉन upon लैम्डा lambda is an इज एन eigenvalue आइगन of वैल्यू ऑफ A inverse. ए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से प्रूफ थे। सो इट वाज ऑल अबाउट योर दिस कोर्स लीनियर अलजेब्रा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैंने स्किप करी है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ, और असाइनमेंट आपका है, लास्ट डेट आई थिंक 10th of June है, so I will share you Google Classroom link, you will share your assignment there and you start preparation for your main viva, ठीक है। कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे Yes, बहुत ज्यादा, ये मत कहिएगा सर वाइवा हमारा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, इट्स अ प्योर कोर्स, इसमें क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं। वाइवा आपका हो सकता है मैं लूँ या कोई और ले, आई डोंट नो कौन वाइवा लेगा, मैं ले सकता हूँ, हो सकता है, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कहीं और चले जाएं, डिपेंड करेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में टोटल, 25? नहीं सर 40 के अराउंड होंगे, 40 से ऊपर। 40? एक क्विज में तो 40 25 ही अपेयर हुए थे, क्यों भाई? क्या सर? क्विज में जो है आपके सिर्फ 35 क्विज में 25 30 स्टूडेंट्स थे, 25 स्टूडेंट्स का मुझे जो है क्विज में रेस्पॉन्स मिला है। हाँ सर, कुछ बच्चों ने मिस कर दिया था मेरे ख्याल से। 35 तो डेफिनेटली